ریڈیو پاکستان ڈراموں کا سلسلہ تو زندہ تو ہم زندہ۔ آج آپ اس سلسلے میں ڈرامہ سنیں گے ظرف۔ تحریر شاہد مسرور، پروڈیوسر محمد سہیل ملک، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ ظرف۔ ظرف کہتا ہے کہ وطن کی مٹی کا احسان چکانا ہے، اس گل کو گلزار بنانا ہے، اپنی صلاحیت کا بیج بو کر ترقی کی فصل اگانا ہے، مخالفین کو بتانا ہے، دکھانا ہے، جتانا ہے کہ اس دھرتی ماں کو سنوار کر اپنے لہو کا نذرانہ دے کر سمجھانا ہے۔ جناب صدر، ہم اس وطن کے بیٹے ہیں، اس کا آج ہیں، اس کا کل بھی بنیں گے۔ یہ تاج ہے تو تاجور بھی بنیں گے، یہ ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو صرف اس کے لیے۔ یہ تھے ہماری یونیورسٹی کے پرجوش طالب علم عمیر خالد، جنہوں نے آج کے مباحثے کی ٹرافی پر اپنا حق جماتے ہوئے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مبارک ہو عمیر، تم نے آج پھر کمال کر دیا۔ واقعی تمہارے سامنے کوئی اور نہیں جم سکتا۔ تم نے یونیورسٹی میں اپنے آخری دن کو صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ، یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آپ لوگ مجھے داد اتنی دیتے ہیں کہ میرا خون جوش مارنے لگتا ہے اور میرا حوصلہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ امیزنگ، ونڈرفل۔ تمہاری خوبی یہ ہے دوست کہ تمہارا بولا ہوا ایک ایک لفظ سچا اور انمول لگتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا سچ بولنے کے لیے ہی تو اسٹیج پر جاتا ہوں۔ مجھے اپنے وطن، اپنے پاکستان سے بہت محبت ہے عبداللہ، اور میں ہمیشہ اس محبت کا اظہار کر کے جیت جاتا ہوں۔ اچھا بھائی، اتنی بڑی ٹرافی جیتی ہے تو ایک چھوٹی سی ٹریٹ تو بنتی ہے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلو۔ چلو بھائی، تم جیتو، ہم دعوت اڑائیں۔ بہت شکریہ ساجد، اور تمہارا بھی بہت شکریہ برجیس کہ تم مٹھائی لے کر آئی ہو۔ لے بھابھی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ سے عمیر نے گریجویشن مکمل کیا اور پھر ساتھ ہی یونیورسٹی کمپٹیشن بھی ون کیا ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ جی واقعی یہ سب خوشی کی بات ہے، لیکن اب عمیر میاں کو اس پریکٹیکل لائف کی طرف آ جانا چاہیے۔ جی جی جی، آپ نے بالکل کیا صحیح سوچا ہے کہا۔ بھائی جان؟ بھائی ساجد، تم جانتے ہو کہ میں اپنے فیصلے اولاد پر مسلط کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور پھر عمیر ایک جینیس لڑکا ہے، سوچتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ یہ تقریریں، مباحثے، کالج یونیورسٹی کا کھیل ہے بھائی جان۔ زندگی کی حقیقتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پریکٹیکل لائف تو سراسر عمل ہے، محنت، انتھک محنت۔ واقعی آپ کو تو پتا ہے کہ ساجد نے پوری زندگی کتنی محنت کی ہے۔ 30 سال پردیس کاٹا ہے، فیملی سے دور رہ کر۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنی ابھی زندگی کا ڈھنگ ہوتا ہے، کوئی پورب میں کامیاب ہے تو کوئی پچھم میں، اور جب ساجد نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے اس کو نہیں روکا۔ عمیر کہتا ہے کہ میں کسی ایسی فیلڈ میں جاؤں گا کہ جہاں مزید تعلیم کا بھی موقع ملے اور کیریئر بھی بنے۔ نوجوان ہے، جوشیلی باتیں کرتا ہے، لیکن بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تمہارا اپنا بچہ ہے، اور
तुम और हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा उसका भला? भाई जिनका भला सोचा जा रहा है, पहले ये तो बताइए कि वो साहब हैं कहाँ? अपने दोस्तों में गए हैं। आज फिर मुबाइसा जो जीता है उन्होंने, तो खुशी मना रहे हैं। ओह अच्छा। हानिया, तुम मेरे सामने हो तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पहुंचने के लिए मेरी बेचैन रूह ने कई जन्म तक सफर किया है। पता नहीं क्यों तुम्हारी हर बात पर यकीन करने को जी चाहता है। मैं हमेशा अपने यकीन का ही इजहार करता हूँ हानिया, और जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मेरा यकीन और पुख्ता हो जाता है। इसलिए कि मेरी आंखों में तुम्हें जो यकीन नजर आता है वो तुम हो। मैं बचपन से सबके मुंह से यही तो सुना कि मैं तुम्हारे लिए तायम्मा की मांग हूँ। और अब मांग सजाने का वक्त बहुत करीब है। बस दुआ करो मुझे फौज में कमीशन मिल जाए तो जिंदगी के ये ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। दुआएं ही तो मांगती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो दुआएं मैं तुम्हारे लिए मांगूंगी वो तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी को भी तो लगेंगी। तुमसे मिलकर करार मिलता है, जिंदगी को निखार मिलता है। हरीम, हरीम, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है? क्या हुआ है बताओ मुझे। अब्दुल्ला, मेरे पेरेंट्स मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं और वो मेरी शादी इसी साल करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो रहा है। तुमने सिर्फ झूठे वादे किए, मोहब्बत जताई, निभाई नहीं। जो तुमसे कहा मैं आज भी उस पर कायम हूँ। जिंदगी में सिर्फ तुम्हें चाहा है हरीम, और तुम्ही से निभाऊंगा भी। कैसे कैसे निभाओगे तुम? मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए हरीम। कोई जॉब तो मिले मुझे। अपने पैरों पर तो खड़ा हूँ। किस बलबूते पर तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं? तुम्हारे मुस्तकबिल पर ना जाने कितने सवालिया निशान खड़े हैं अब्दुल्ला। वक्त ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया है। ये अपनी ही रफ्तार से चलता है, चाहे कोई आगे निकल जाए या फिर पीछे रह जाए। मैंने वक्त से नहीं तुमसे मोहलत मांगी है। तुम जानती हो कि मेरे वालिदैन गांव में रहते हैं। मैं यहाँ शहर में पढ़ने और अपना मुस्तकबिल संवारने आया हूँ। अभी कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। मुझे मोहलत दो मुझे। फैसले ना सुनाओ। फैसला तो हो चुका है अब्दुल्ला, और मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी। हरीम, हरीम, हरीम। हिम्मत हार गया? एक लड़की इनकार करके क्या चली गई? जिंदगी खत्म हो गई क्या? लड़की नहीं, जिंदगी कहो यार। मैंने तो अपनी खुशियों के हर फ्रेम में उसी को सजा रखा था। ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे छोड़ जाए? जिंदगी का एक फ्रेम ऐसा भी है जिसमें तुम्हारा चेहरा सजा हुआ है। देखो क्या हालत बनाई हुई है तुमने। बिखरे बाल, बढ़ा हुआ शेव, सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा। तो क्या करूं? जो तुम्हारा है वो ही तुम्हारा है। जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं है उसके लिए जिंदगी क्यों खराब करते हो? मेरे दोस्त, तुम तो आईने की तरह शफाफ हो। तुम्हारे अंदर भी अगर बाल आ गया तो सच्चाई का यकीन खत्म हो जाएगा। क्या समझाना चाहते हो मुझे? यही कि जिंदगी से तेज कोई नहीं चल सकता। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है यार, बहुत कुछ करना है तुम्हें। क्या करूंगा मैं? डिग्री मिली है, रोजगार नहीं मिला। मोहब्बत को पाना चाहा तो मुफलिसी ने महरूम कर दिया। ये सब जज्बाती बातें हैं यार। हर शख्स को डिग्री के साथ ही नौकरी नहीं मिल जाती।
थोड़ा वक्त लगता है, कोशिश करनी पड़ती है। असल मुकाबला तो अमली जिंदगी में आने के बाद शुरू होता है। हिम्मत करोगे तो आगे बढ़ोगे ना मेरे दोस्त। काश काश ये मोहलत मुझे मिल जाती। मिल जाएगी, मिल जाएगी। अभी 1 साल है उसकी शादी में। उठो, शेव बनाओ और चेंज करके आओ। हरीम, या तो तुम अब्दुल्ला से वादा नहीं करती या फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तुमने ठीक कहा हानिया, लेकिन जिंदगी की प्लानिंग सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि लड़कियों का मुस्तकबिल उनके माँ बाप की मर्जी और मंशा से जुड़ा होता है। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी तो बताई जा सकती है ना। मैंने अम्मी से बात की थी, तो फिर उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, उसका अपना घर है या नहीं। तो मैंने बता दिया कि अभी कुछ नहीं करता, फ्रेश ग्रेजुएट है, जॉबलेस है, किराए के कमरे में रहता है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे लिए मेरे मामू साथ का कनाडा से रिश्ता आया है। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाखों कमाता है और खानदान का है। तो तुमने हाँ कर दी? अगर मेरे इख्तियार में होता कि मैं फैसला कर सकती तो शायद कभी हाँ ना करती। बस उन्होंने फैसला सुना दिया और मैंने सर झुका दिया। अरे उमेर बेटा, अभी तक जाग रहे हो? सुबह तुम्हारा टेस्ट भी है बेटा, देखो 10:30 बज गए हैं। सुबह की तैयारी ही कर रहा हूँ अम्मी। ये टेस्ट बड़ा टफ होता है, फौजी अफसरान रियायत नहीं देते। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे बच्चे। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। लेकिन कामयाबी के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना अम्मी। फिजिकल टेस्ट मैं तो पास हो गया हूँ, बस ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और क्लियर हो जाए तो बस मैं अपने दादा जान की तरह फौजी अफसर बन जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, अब तुम सो जाओ। भाई उमर का टेस्ट और इंटरव्यू सब बहुत अच्छा हुआ है और बड़ी उम्मीद है कि उसे फौज में कमीशन मिल जाएगा। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि अब्बा हुजूर की तरह उमर भी एक बड़ा फौजी अफसर बने। उसके दादा ने शहीद होकर वतन का मान बढ़ाया था, वो फातेह बनकर गाजी कहलाए। आमीन आमीन। उसका रोशन मुस्तकबिल तो हम सबकी ख्वाहिश है भाभी। और यही ख्वाहिश लेकर तो हम भाईजान की खिदमत में हाजिर हुए हैं आज। जी भाई साहब, हम दोनों भाइयों की एक ही की तो औलाद है ना। जी जी, जैसे उमर मेरा भी बेटा है, बिल्कुल वैसे ही हानिया आपकी भी तो बेटी है। अरे मुझे सब पता है, सब पता है साजिद, तुम बिला वजह बात को घुमा रहे हो। अरे साफ साफ कहो ना, अब उनके हाथ पीले करना है। जी भाईजान, अब कम से कम रस्म तो पूरी हो ही जाए ना। मेरा मतलब है बाकायदा एंगेजमेंट का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों? हाँ भाई, उमर का रिजल्ट आ जाए तो ट्रेनिंग पर भेजने से पहले ये फरीजा अदा कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर। उमर खालिद, मैंने तुम्हें जाती हैसियत में अपने पास बुलाया है, ये बताने के लिए कि बहैसियत डिबेटर और एथलीट मैं तुम्हारा हमेशा से फैन रहा हूं। थैंक यू सर। जब तुमने कंटोनमेंट कॉलेज झंग से डिबेट की ट्रॉफी जीती तो मेरी पोस्टिंग वहीं पर थी, और इत्तेफाक से जब तुमने रिसालपुर से डिबेटिंग ट्रॉफी जीती तो मैं उन दिनों रिसालपुर में था। माय प्लेजर सर। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम कमीशन का इम्तिहान पास कर लेते, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल मुकाबला होता है नौजवान।
यहाँ वही कामयाब होता है जो सबसे बेहतरीन होता है। सर, बेहतरीन तुम हो तुम बेहतरीन, लेकिन कहीं ना कहीं तुमसे चूक हो गई और तुम पास ना हो सके। सर? इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। ये देखिए, कहीं नाम नहीं है तुम्हारा। भारत, विश यू गुड लक। हौसला नहीं हारना। तुम एक जेन्युइन बॉय हो, अपनी कोशिश जारी रखना। ओके सर, गुड लक। क्या हुआ उमर? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, कुछ नहीं यार। हैं? कुछ तो हुआ है यार। जिंदगी में पहली मर्तबा नाकाम हुआ हूँ, फेल हो गया हूँ यार। ओह नो, तो? इस जिस्म पर वर्दी सजाने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। मैं सोचता था कि अपने दादा जान की तरह इस धरती पर कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। होता है यार, होता है। मैं भी तो ग्रेजुएशन के बाद अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल कर बैठा हूँ। जगह का किराया भी पूरा नहीं होता, लेकिन डटा हुआ हूँ ना। हाँ, तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी है। कमांडर ने मुझे समझा दिया है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करनी है। क्या हुआ अगर एक स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुकी तो अगला सही। मैं तो पहले ही कहता था कि जिंदगी स्टेज पर खड़े होकर की जाने वाली तकरीर नहीं है, ये अमली हकीकत है। इससे आंखें मिला कर जिया जाता है। इन नौजवानों ने जिंदगी को खेल समझ रखा है, कि इनके लिए हार और जीत बनकर रह गई है। आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी कयामत आ गई है? अरे ये कोई छोटी बात है। यहाँ करियर बनाना बहुत मुश्किल काम है। उमैर को भी मेरी तरह मुल्क से बाहर जाकर अपने लिए मौके ढूंढना पड़ेंगे। आपका मतलब है वो भी कहीं बाहर जाकर जॉब करे? जी बिल्कुल, हाँ। कम से कम मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा उसका। 4 पैसे तो कमाने का ढंग सीख लेगा वो। आप जानते हैं कि आपके ढंग से कमाए हुए इन 4 पैसों की वजह से मैंने और हानिया ने जिंदगी के 30 साल महज इंतजार में गुजारे हैं। कभी टेलीफोन की घंटी सुनने की बेकरारी, तो कभी दरवाजे पर दस्तक का इंतजार। ये सब जज्बाती बातें हैं। खाली पेट और खाली जेब हो तो मोहब्बत और अपनाइयत के सारे जज्बे दम तोड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये तो सोचिए। ओहो, मैंने तुम्हारी और हानिया की खातिर परदेश में जाकर इसलिए मेहनत की ताकि हम सबका मुस्तकबिल महफूज हो सके। लेकिन जो वक्त मैं गुजार चुकी हूँ वैसी जिंदगी अपनी बेटी को नहीं देना चाहती हूँ। सारी जिंदगी महज एक इंतजार, बचपन बाप के इंतजार में गुजार दिया और अब बाकी जिंदगी शौहर के इंतजार में गुजर जाए। बिजनेस जिंदगी में तकलीफों के बाद ही राहत आती है। बेरोजगारी और बेचैनी से कहीं बेहतर है कि उमर के लिए एब्रॉड कोई रास्ता निकाला जाए। तो क्या करेंगे आप? मैं दुबई में उसकी जॉब के लिए किसी से बात करूंगा। 30 साल वहां गुजारे हैं मैंने, इतने तो ताल्लुकात हैं ना मेरे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना। ठीक है अम्मी, लेकिन ये मेरी जिंदगी का एम था। मैं अपने मुल्क, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, जिंदगी यहीं तो खत्म नहीं हो गई ना, किसी और फील्ड में, किसी और तरह। आई नो बेटा, यू कैन डू इट। इंशाल्लाह। मैं नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ अम्मी, बस थोड़ा सा हौसला पस्त हुआ है। जिंदगी में हार और जीत के माने तुम मुझसे बेहतर जानते हो बेटा। तुम्हें अफसोस इसलिए हुआ कि तुम हमेशा जीतते आ रहे हो, लेकिन शिकस्त हौसला घटाने के लिए नहीं, हौसला बढ़ाने के लिए होती है। यस, आई लव यू अम्मी। लव यू माय सन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम।
मैं मंटू बोल रहा हूँ दुबई से। क्या हाल है आपके? अरे मंटो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अरे भाई, हम कहाँ बदलने वाले हैं, हम वैसे ही हैं जैसा आप छोड़ कर गए थे। और अब तो लगता है कि आपका हमारा ताल्लुक जुड़ा ही रहेगा। हाँ, क्यों नहीं जुड़ा रहेगा भाई, और सुनाइए। बात कुछ सुनाएंगे। फिलहाल तो आपको ये बताना था कि आपने अपने भतीजे का जो CV मुझे व्हाट्सएप किया था ना, वो मैंने कंपनी को उसी वक्त भेज दिया था। और फिर मैंने जोर भी बहुत लगाया था ताकि पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए। अच्छा, तो क्या जवाब आया? भाई आपका हवाला भी दिया और हमने खूब जोर लगाया, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो जनाब, सिफारिश काम कर गई और खुशखबरी आ गई है। यानी कि वो यानी कि जी, हाँ। आप जल्द अज जल्द डॉक्यूमेंट्स भेजिए ताकि साहिबजादे का वीजा निकल सके। और हाँ, वैक्सीनेशन के मामलात भी अप टू डेट करके रखिएगा। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब अप टू डेट है। मैं पहली फुर्सत में तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मंटो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, खुश रहिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कौन था? क्या हुआ? उमैर की नौकरी पक्की हो गई है दुबई में। अच्छा। मंटो साहब का फोन आया था। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा रिक्वेस्ट की थी और उन लोगों ने मेरी लाज रख ली। तो आपने खालिद भाईजान से मशवरा किया? अरे मशवरा कैसा, ये खुशखबरी है, चलकर सुना देते उनको। चलो ठीक है, चलिए। उमैर, पापा को बड़ी जल्दी है तुम्हारी और मेरी शादी की। वो चाहते हैं कि कम से कम बाकायदा एंगेजमेंट तो अभी हो जाए बस। चाचा जान से ज्यादा जल्दी तो तुम्हें लग रही है, क्यों? तुम नहीं चाहते? अगर नहीं चाहता तो सारे काम छोड़कर तुम्हारे बुलाने पर यहाँ नहीं आया हुआ होता। तुम्हें पता है, पापा ने तुम्हारी जॉब की बात भी कर ली है। मेरी जॉब कहाँ? कंफर्मेशन भी आ गई है दुबई से। दुबई? तो क्या तुम समझती हो मैं चला जाऊंगा? तो मैं जो कुछ भी करूंगा अपने मुल्क में रहकर करूंगा। आधी रोटी खाऊंगा लेकिन हक पूरा अदा करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पापा को तो बड़ी होप है। और जो मेरी होप है। उमैर तुम्हारा भी बेटा है साजिद मियाँ, यकीनन तुमने उसके लिए जो सोचा है वो बेहतर ही सोचा होगा। वहाँ बड़े मौके हैं भाईजान, उमैर की वहाँ जाकर जिंदगी बन जाएगी। हाँ ठीक है, असल में तुम्हारे और मेरे नज़रियात इस मामले में थोड़े मुख्तलिफ रहे हैं। तुमने मुल्क से बाहर जाकर करियर बनाया और मैंने मुल्क में रहकर कोशिशें की हैं। मौके मुझे भी मिले लेकिन मेरा ज़मीर नहीं माना कि कर्नल मुईद शहीद का बेटा वो धरती छोड़ जाए जिसकी मोहब्बत में मेरे बाप ने अपना खून बहाकर कुर्बानी दी। और फिर मेरी कोशिशों का मुझे समर भी तो मिला है भाई, खुशहाली है, सुकून है, और क्या चाहिए। अब हालात बदल चुके हैं भाईजान। देखे ना, दुनिया किस तरफ जा रही है। ज़रूरियात और एहतियाजात की नौइयत तब्दील हो गई है। और दुबई कितना दूर है? अब 2 घंटे भी नहीं। आपने जो फैसला भी किया है हमें उस पर एतबार है साजिद मियाँ। भाभी, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि उमैर और हानिया खुश रहें, बस, और हम क्या चाहेंगे। लेकिन भाई ये उमैर मियाँ कहाँ हैं? उन्हें तो बुलाइए। कहाँ हैं भाई? जी जी बिल्कुल। उमैर बेटा, चचा और चची बुला रहे हैं। जी अम्मी, आ रहा हूँ। आज की नौजवान नस्ल तो बस मोबाइल फोन पर ही लगी रहती है। नहीं बिरजीज, उमैर अपने वक्त की बहुत कदर करता है। वो गैर जरूरी मोबाइल फोन को हाथ भी नहीं लगाता। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? इतने बिजी हो गए कि चची याद ही नहीं रही। हाँ क्यों नहीं, बस टेस्ट एग्जाम रिजल्ट यही चलता रहा। चलो चलो, हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अब नए इरादे और नई मंजिलों के लिए कमर कस लो। डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। दुबई में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। दुबई में?
नहीं चाचा जान, मैं जो कुछ करूंगा यहीं अपने वतन में रहकर करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। अरे क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? यहाँ मौके मिले तो रहे ना बंदा। क्यों नहीं, बहुत मौके हैं चाचा जान। जितनी मेहनत और कोशिश हम बाहर जाने के लिए और बाहर जाकर करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत अपने मुल्क में कर लें तो हमारा भी भला हो और इस मुल्क का भी। देखो, मैं बात कर चुका हूँ। नहीं चाचा जान, आई एम सॉरी। अरे अरे, ये ऐसे मना करके चला गया मुझे। आप इत्मीनान रखिए, मैं समझाऊंगी ना इसे। उमैर बेटा, इतने अहम फैसले जज्बात से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। तो फिर मेरे फैसले की भी अहमियत होनी चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जज्बाती नहीं होते, सोचते समझते हैं। साजिद मियाँ सिर्फ तुम्हारे चचा ही नहीं बल्कि होने वाले ससुर भी तो हैं। वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहते हैं बेटा। अम्मी, रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बतें और ये आज़ाद फिजाएं सब छोड़कर चला जाऊं? इस मिट्टी के खमीर से पैदा हुआ हूँ और वफा गैरों से करूं? माँ, मैं आपका बेटा हूँ, इस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है और मैं इसका हक अदा ना करूं? मैं कदर करती हूँ बेटा तुम्हारी इन जज्बात की, लेकिन मामलात उलझने लगे हैं अब। जब अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत किए जाने लगे तो मामलात सुलझते नहीं, उलझ जाते हैं अम्मी। तुम्हें साजिद मियाँ को इससे जवाब देकर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने बहुत बुरा मनाया है इसका, और फिर तुम्हारे अब्बू को भी तुम्हारा ये अंदाज पसंद नहीं आया। मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने वतन के लिए हूँ। मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में रहकर मेहनत करना चाहता हूँ। आप लोग क्यों मुझे ऐसा नहीं करने देते? उफ़ो। तुमने अंदाज देखा तो उसका? मैंने किस किस से नहीं कहा, कितनी सिफारिश कराई, फिर जाकर इतनी अच्छी जॉब का इंतजाम हुआ और उसने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया। आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं। जवान खून है, समझने में कुछ तो देर लगेगी। आप तो समझे इस बात। मैं समझ चुका हूँ। वो समझता है कि हर जगह धुआंधार तकरीर करके तालियां बजवा लेगा, लेकिन जिंदगी तालियां बजाने से नहीं संवरती। मैं ऐसे नाफरमान लड़के को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे अपने बड़ों का जरा लिहाज और ख्याल ना हो। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह समझ गई हो बिल्किस। कोई अच्छा रिश्ता आए तो हानिया के लिए हाँ कर दो, समझी? ओह मेरे खुदा, क्या हो? क्या बात है हानिया, खामोश क्यों हो? रो क्यों रही हो? मुझे बताती क्यों नहीं होगी क्या हुआ है? उमैर, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आई हूँ। पापा ने हमारा रिश्ता खत्म करने का कह दिया है। उन्होंने मेरी हुब्बुल वतनी को अपनी नाफरमानी से ताबीर किया है। पता नहीं क्यों मेरे अपने मुझे नहीं समझ सके। मैं सारी जिंदगी अपने सच्चे बोलों की वजह से लोगों की दाद समेटता रहा, लेकिन आज मेरे अपने लोग मेरे अंदर से मेरी सच्चाई को निकाल फेंकना चाहते हैं। मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, ना ऐसे ना वैसे। हानिया, एक बात तो तय है कि मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो कोई नहीं, मगर हाँ, इस पाक सरजमीन के नाम पर मैं तुम जैसी हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकता हूँ। खुदा हाफिज। उमैर, उमैर। तुम हार गए? उमैर, तुम जैसा नौजवान भी टूट सकता है, बिखर सकता है। मुझे किसी ने नहीं समझा अब्दुल्ला। मेरे अपनों ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है। याद है, एक दिन तुमने मुझे समझाया था और मैं समझ गया था। आज तुम मेरे सामने बैठे हो और मुझे तुम्हारे कहे हुए अल्फाज दोहराने पड़ रहे हैं। क्या लफ्जों और जज्बों की कोई कदर रही हमारे यहाँ? हाँ है। मुझे देखो, मैंने तुम्हारे लफ्जों से, दिए हुए हौसले से क्या कुछ पा लिया।
ये इंस्टीट्यूट आज कैसे चल निकला है। मैं खुद बेरोजगार था, आज कई लोगों का रोजगार वाबस्ता है मुझसे, मेरे इंस्टीट्यूट से। मगर मेरा कसूर क्या है? कसूर किसी का भी नहीं है, बस हम जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि चांद को देखें और वो हमारी झोली में आ गिरे। हम मेहनत से पहले मेहनत का फल खा लेना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ ना कि अपनी सलाहियत, अपनी ताकत अपने वतन पर निछावर करूँ। फिर सब मेरे मुखालिफ क्यों हो गए हैं? मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। आओ मेरे साथ मिलकर मेरे इंस्टीट्यूट में नौजवानों की रहनुमाई करो, मिलकर नस्लों की आबियारी करते हैं यार। नए दिलों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। कमांडर नुमान का फोन है। हेलो सर। हाउ आर यू यंग मैन? आई एम फाइन सर। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हिम्मत ना हारना और कोशिश जारी रखना। सर, पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था, लेकिन आज मेरे पास एक और लिस्ट भी आई है जिसमें तुम्हारा नाम मौजूद है, लेकिन एक शर्त के साथ। जी सर। इस लिस्ट में 10 नाम हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से, और इन 10 नामों में सिलेक्शन सिर्फ 2 का होना है, ठीक है सर? बस तो कल सुबह 8 बजे इंटरव्यू टेस्ट के लिए आ जाओ। आई होप के यू विल गेट टॉप इन लिस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई से अगेन विश यू गुड लक। क्या हुआ, कोई अच्छी खबर है? हाँ, लगता है मंजिल बुला रही है। गुजरे सालों से तारीख तुझसे कहती है, पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल कब रहती है। एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। ओ धड़कन सब्ज ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। देखिए मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिस तरह तुम कल से अब तक जाए नमाज पर बैठी उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांग रही हो, तो उस माली के बहरोबर की अदालत में माँ की दुआ कैसे सुरखुरी नहीं होगी? उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। और फिर मेरा बेटा तो सच और हक का लंबरदार है, और अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Young man, begins a new era. Now you are selected as training officer in Pak Army. Congratulations, gentlemen. Sir, thank you, sir. Thanks God. हेलो। हाँ हानिया, क्या बेचैनी है? मुझे बताओ क्या हुआ? तुमसे जुदाई का एक और रास्ता हमवार हो गया है। क्या क्या मतलब? भाई ट्रेनिंग पर जाऊंगा तो आर्मी ऑफिसर बनूंगा ना, और वहाँ तुम साथ नहीं होगी। सच? माय गॉड, तुम्हें बहुत मुबारक हो। मैं यू आर अ जानवन विनर। तुम फिर जीत गए। इस बार मंजिल भी मिल गई है और हम सफर भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं हमेशा। बहुत मुबारक हो भाईजान, और भाभी आपको भी बहुत मुबारक हो।
खैर मुबारक, खैर मुबारक। उमैर सिर्फ हमारा नहीं, आप लोगों का भी तो बेटा है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, भाईजान का मुंह तो मैं मीठा कराऊं। इसका मतलब है कि तुमने आज मेरी बात मान ली। जी भाईजान, हमें अपने से छोटों की राय को भी कभी न कभी अहमियत देना चाहिए। उमैर ने जो कहा वो साबित भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं अव्वल दिन से इस बात का कायल हूँ कि मुल्क के बासलाहियत, पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों को मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। उनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस अपने मुल्क को है, अपने वतन को है। भाई हम मेहनत करेंगे तो इस धरती का कर्ज चुकाएंगे ना। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा भाईजान, और वैसे भी आज तो आप जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। अच्छा तो फिर लो, हम भी तुम्हारा मुंह मीठा कर दें। आखिर को तुम हमारे समधी भी तो हो भाई। भैया हाँ, अंदर भेज दो। अच्छा सर, अच्छा। सलाम अलैकुम सर। हरीम, तुम? हाँ, मैं बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, मगर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी शादी? कुछ भी नहीं, वो कल था और ये आज है। सब कुछ बदल गया है। क्या हुआ? सब खैर है ना? बोलो, खामोश क्यों हो? एक हादसे में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए। ओह माय गॉड। और वो? शादी नहीं हुई, लेकिन मैंने बड़ी बेदर्दी से तुम्हारा दिल तोड़ा था, इसीलिए तुमसे दोबारा राब्ते की हिम्मत नहीं हुई। और आज भी अगर मुझे मालूम होता कि इस इंस्टीट्यूट के मालिक तुम हो तो कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करती। आज मुझे यकीन हो गया है कि कुदरत हमेशा सच्चाई का साथ देती है और मोहब्बत कभी नहीं मरती। देर आयत दुरुस्त आयत। क्या मतलब? मतलब यही कि ये इंस्टीट्यूट मेरा नहीं तुम्हारा है, और अब मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगी जॉब के लिए तुम्हारे पास। अरे अरे, फिर रोने लगी? तुमने तो मेरा ख्वाब पूरा कर दिया है हरी। अब हम एक और इंस्टीट्यूट खोलेंगे अपने गांव में। साथ चलोगी ना तुम? हाँ, तुम्हारे साथ। ज़र्फ शाहिद मसरूर का लिखा हुआ ड्रामा आपने सुना। जिन सदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया उनके किरदारों नाम ये हैं: खालिद, असफर औसाफ। भाई मैं अव्वल दिन से इस बात का कायल हूँ कि मुल्क के बासलाहियत, पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों को मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। उनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस अपने मुल्क को है, अपने वतन को है। भाई हम मेहनत करेंगे तो इस धरती का कर्ज चुकाएंगे ना। महर अफरोज रिजवी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे बच्चे। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। बिरजीस मुनज़्ज़ा इरशाद। आपको तो पता है कि साजिद ने पूरी जिंदगी कितनी मेहनत की है। 30 साल परदेश काटा है, फैमिली से दूर रहकर। अब्दुल्ला आशिर रजा। मुझे देखो, मैंने तुम्हारे लफ्जों से, दिए हुए हौसले से क्या कुछ पा लिया। ये इंस्टीट्यूट आज कैसे चल निकला है। मैं खुद बेरोजगार था, आज कई लोगों का रोजगार वाबस्ता है मुझसे, मेरे इंस्टीट्यूट से। उमैर मोहम्मद दानियाल। बहुत शुक्रिया, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोग मुझे दाद इतनी देते हैं कि मेरा खून जोश मारने लगता है और मेरा हौसला आसमान को छूने लगता है। मैं अपनी जिंदगी का सच बोलने के लिए ही तो स्टेज पर जाता हूँ। मुझे अपने वतन, अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है अब्दुल्ला, और मैं हमेशा इस मोहब्बत का इजहार करके जीत जाता हूँ। हरीम शहला शहनशाह। तुम्हारे मुस्तकबिल पर ना जाने कितने सवालिया निशान खड़े हैं अब्दुल्ला। वक्त ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया है।
یہ اپنی ہی رفتار سے چلتا ہے، چاہے کوئی آگے نکل جائے یا پھر پیچھے رہ جائے۔ ہانیہ، بشرا۔ میری آنکھوں میں تمہیں جو یقین نظر آتا ہے وہ تم ہو میں۔ بچپن سے سب کے منہ سے یہی تو سنا کہ میں تمہارے لیے تائمہ کی مانگ ہوں۔ منٹو صاحب، آصف الیاس۔ ارے بھائی، ہم کہاں بدلنے والے ہیں، ہم ویسے ہی ہیں جیسا آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ کمپیئر، سمینہ عامر۔ یہ تھے ہماری یونیورسٹی کے پرجوش طالب علم عمیر خالد، جنہوں نے آج کی مباحثے کی ٹرافی پر اپنا حق جماتے ہوئے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ کمانڈر شمشاد علی خان۔ عمیر خالد، میں نے تمہیں ذاتی حیثیت میں اپنے پاس بلایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بحیثیت ڈیبیٹر اور ایتھلیٹ میں تمہارا ہمیشہ سے فین رہا ہوں۔ اور ساجد کا کردار شاہد مسرور نے ادا کیا۔ یہ تقریریں، مباحثے، کالج یونیورسٹی کا کھیل ہے بھائی جان، زندگی کی حقیقتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پریکٹیکل لائف تو سراسر عمل ہے، محنت، انتھک محنت۔ صدا بندی عبدالرشید قریشی، تدوین محمد نواز، پروڈیوسر محمد سہیل ملک، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ نشانی ہے یہ دیس میرا دل جانی ہے، پرکھوں کی ایک نشانی ہے، یہ دیس میرا دل جانی ہے۔ یہاں دریا شور مچاتے ہیں، یہاں جھرنے گیت سناتے ہیں، یہاں ساون گر گر آتے ہیں، یہاں مور پپیہے گاتے ہیں، ہر صبح اس کی متوالی، ہر شام اس کی مستانی ہے، یہ دیس میرا نشانی ہے، یہ دیس میرا دل جانی ہے۔ دانشور ہے ہم کو اس میں شمس و قمر، اس کے ہر ہر گوشے میں اب علم کی شمع جلانی ہے، یہ دیس میرا
पर ही लुटानी है। ये देश मेरा दिल जानी है, पुरखों की एक निशानी है, पुरखों की एक निशानी है। ये देश मेरा दिल जानी है, पुरखों की एक निशानी है, पुरखों की एक निशानी है। ये देश मेरा